دیسی دھوم ریڈیو کے پروگرام اردو دھوم میں ہم اپنے سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خواتین حضرات، اگر ہم ادب و شاعری کے منظرنامے پر نگاہ ڈالیں تو ادب و شاعری کی اہمیت دنیا کی تمام زبانوں میں محبت اور امن کا پیغام دیتی ہے۔ انسانی نفسیات کی ترجمانی کے ساتھ ساتھ انسانی معاشرے کے ارتقاء کو بھی تاریخ کے زمن میں اجاگر کرتی ہے۔ اپنے پروگرام میں آج ہم بات شاعری اور سنگیت کی کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم شاعری کی بات کرتے ہیں تو نغمگی خود بخود کہیں سے سمٹ آتی ہے، کہیں سے خود بخود نمودار ہو کر ہمارے کانوں کو ایک رس گھولنے لگتی ہے، ایک ہمیں زندگی کے حسن کی طرف راغب کرتی ہے۔ تو بالکل یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ شاعری زمانہ ساز ہے، تو سنگیت بھی وہ زمانے کی نرم و گرم ہواؤں کا عکاس ہے۔ سنگیت وہ بھی خوشی اور دکھ کے لمحوں کا وہ گواہ ہے۔ اور اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب شبیر خان صاحب، شبیر خان گلو صاحب۔ میں ان کا تعارف کیا پیش کروں کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے۔ شبیر خان گلو صاحب ہم لوگ سے یہاں تشریف لائے ہیں۔ ان کا گھرانہ وہ موسیقی کے حوالے سے ایک معتبر اور ایک نامور گھرانہ ہے، اور ان کے والد استاد حسین بخش گلو صاحب ایک نامور اور بہت عظیم فنکار ہیں۔ ادب کے فن کے حوالے سے، فن شاعری اور فن موسیقی کے حوالے سے ان کا نام بہت نمایاں ہے۔ پورے بر صغیر میں ان کی موسیقی کی دھوم مچی ہوئی ہے، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ جو ان کے صاحبزادے یہاں جرمنی میں موجود ہیں وہ آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ اور خان صاحب کا گھرانہ وہ ایک نامور گھرانہ ہے۔ آپ کا تعلق پٹیالہ گھرانے سے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شام 84 گھرانہ جو کہ سنگیت کے حوالے سے ایک بہت نامور بہت معتبر گھرانہ ہے، اس سے آپ کا تعلق ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہنا چاہوں گی، اور میں چاہوں گی شبیر گلو صاحب آپ اپنا تعارف ہمارے سامعین کو خود پیش کیجیے۔ نوازش حضور، پہلے تو بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے مدعو کیا اس انٹرویو کے لیے جناب، اور ہر چیز میں میرے مالک کا دخل ہے۔ بے شک، بلا شبہ۔ تو خوش ہوں میں کہ ادب والے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں، جو لکھتے ہیں، جو ماشاءاللہ بولتے بھی سنتے ہیں۔ میں بڑا تعارف میرا پہلے ہی آپ کروا چکے ہیں کہ میں پٹیالہ اور شام 84 گھرانے سے منسلک ہوں۔ والد محترم استاد حسین بخش گلو، اور ایک بہت بڑا نام موسیقی کی دنیا میں، بلا شبہ، اور پاکستان ماشاءاللہ بہت بڑے پیمانے یعنی کہ بر صغیر میں ان کو مانا گیا کہ لتا جی نے ان کو پرسنلی بلایا، خان صاحب کو، دلیپ جی، یعنی یہ لوگ بہت بڑے نام ہیں۔ نور جہان جی کی جو نواسی تھی انہوں نے شاگرد کروائے خان صاحب کی، گلو جی آپ ہی ہیں جو، بلکہ میں اس بات کا ذکر کرتا چلوں کہ میڈم جی کے الفاظ تھے والد صاحب کی تربیت میوزک کیسے خان صاحب سکھاتے ہیں، خان صاحب آپ کو تو کوئی طوطا بھی دے دیں تو اس کو بھی شروع کر دیں، یعنی کہ ماشاءاللہ ان کی چھٹی میں مالک نے اتنے برکت ڈالی ابھی تک ماشاءاللہ۔ تو استاد سلامت علی نزاکت علی خان شام 84 سے میرے بزرگ میرے پھوپھا ہے، اور شفقت علی میرے بہنوئی ہیں، کزن بھی ہے رفاقت علی خان کزن ہے میرے، چاند سورج میرے بھائی ہیں۔ ماشاءاللہ، دیکھیں کتنے نامور آپ لوگوں کی ہستیاں یہاں گنوا رہے ہیں۔ یہ ہماری واقعی خوش قسمتی ہے کہ آپ جرمنی میں یہاں موجود ہیں، ہمارے سامعین آپ کو براہ راست سن رہے ہیں۔ اور آپ کتنے عرصے سے یہاں جرمنی میں ٹیم ہیں؟ جی مجھے 24-25 سال ہو گئے۔ اچھا، اور لگتا ہے ایسے ہی کل آیا۔ جی ہاں، یہاں تو وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوتا پردیس میں، اور پردیس میں جب انسان آ جاتا ہے تو دیکھیں جس طرح ہم شاعر لوگ ہیں، ہم شاعری کو بھی ایک نیا رنگ مل جاتا ہے، ایک دیش سے دوری کا ایک احساس وہ نمایاں ہو جاتا ہے شاعری میں۔ تو اسی طرح فن موسیقی میں یا فن سنگیت میں بھی کچھ ایسا ہے کہ جب آپ بیٹھ کے یہاں کی سرد ہواؤں میں اپنے دیش کی کھلی فضاؤں کو یاد کرتے ہیں، تو کیا کوئی نئے سر یا کوئی نئے سنگیت یا کوئی نئے نغمے وہ آپ کے کانوں میں گونجتے ہیں یا اس حوالے سے؟ بہت اچھی بات کی آپ۔ دیکھیے جی، آواز جس آواز میں درد نہیں ہے، جی درد کیسے آپ اپنے وطن سے دور ہیں، ماں باپ سے دور ہیں، بہن بھائیوں سے دور ہیں، ٹھیک ہے نا، پردیسی یاد آ جاتا، اپنے یاد آتے ہیں،
तो वो जो यादें हैं ना वो दर्द की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं, बड़ा मीठा सा। तो वो आपके जनाब गायकी में छलकता है, देखिए। और इस तरह बल्कि मैं बात से बात निकलती है, रागों के असरात हैं, इनकी टाइमिंग है, इनकी फीलिंग्स है। कुछ राग देखिए सुबह गाए जाते हैं इबादत के लिए, जैसे भैरव भैरवी, सुबह जब आप उठते हैं तो पाकों का जिक्र कवाली या हमदनाथ की शक्ल में राग भैरवी या भैरवी की शक्ल में, लल्लत की शक्ल में। फिर दोपहर के राग हैं, गिनवाने जाऊं तो बहुत हो जाएगा, तलंग है, भीमपलासी है, हुजूर। शाम के राग है, ठीक है। इसी तरह इनकी टाइमिंग से इनके असर हैं। कुछ बहार के राग हैं, जैसे धूप निकली है, फूलों के हैं, उसमें खुशी का असर है। कुछ राग ऐसे हैं जिसमें दर्द का एहसास है, और कुछ राग ऐसे हैं जिसमें आप जलाल देखते हैं, जैसे दरबारी है, जैसे दरबारी है, देखिए। तो बिल्कुल आप जब वतन से दूर हैं तो वो दर्द, बल्कि वो कभी कोई कमाल, वो फिर लोग कहते भी आपके आवाज में तो दर्द है, सुना हुआ है जुमला, बिल्कुल ये सुना में आता है। तो वो जब आप कुछ जिंदगी में खोते हैं या किसी चीज की तशनगी रह जाती है, बिल्कुल। ये जैसे कि बारिश के मौसमों का एक राग है, राग मल्हार, जहाँ तक मेरी बिल्कुल मालूमात है। तो राग मल्हार को भी लोग जो है वो परदेश में, खास करके जो हमारे देसी लोग यहाँ बसे हुए हैं, वो एक खास उसके साथ एक रग़बत रखते हैं, वो एक खास उसको, क्योंकि देखिए बरसात का मौसम हमारे यहाँ एक खुशी का मौसम है, और उस खुशी के को यहाँ मिस, हालांकि यहाँ सारे साल बारिश होती है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे कोई ना कोई छेड़े रखता है, राग कोई ना कोई छेड़े रखता है। सही कह रहे हैं आप। उस हवाले से जो कि देखिए यहाँ पे लोगों का रुझान इस तरफ रहता है। तो आपने जिस तरह सारे क्लासिकल रागों का जिक्र किया और इस तरफ बात की, तो आपके ख्याल में यहाँ पे जर्मनी में जो कम्युनिटी है या यहाँ जो लोग हैं, तो वो इस फन से कितना वाकिफ हैं आपके ख्याल में? आप तो हर जगह प्रोग्राम पेश करते हैं। जी, बल्कि मैं जिक्र करता चलूँ, वसीला हमारा एम्बेसी ही बनी है जी। मैं कम्युनिटी की बात हुई तो एम्बेसी वालों ने ही मुझे 23 मार्च के प्रोग्राम के हवाले से मुझे बुलाया स्पेशल हम लोग से, और काफ़ी इनके इवेंट किए मैं, और हमेशा साथ रहा हूँ। तो कम्युनिटी वहाँ पे आई, खुश होती है, कम्युनिटी मुंसलिक है, आर्टिस्टों को रहना चाहिए कम्युनिटी से मुंसलिक। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे बात वही आ जाती, लोग आए हैं मेहनत मजदूरी के लिए, सिलसिला ये बढ़ता रहता है। लेकिन मैं चाहता हूँ, जैसे आपकी माशाल्लाह, मैं आपका जिक्र कि उर्दू बज़म से वाबस्ता है, बल्कि आप तो मेरे ख्याल बानी लोग हैं, बसाने वाले ऐसे ही तंजीम में प्यार की, तो ऐसी अगर कल्चरली एक्टिविटीज कुछ होती रहे तो मेरा ख्याल कम्युनिटी पर खींचती है, आपकी तरफ राग़िब होती है। उनके लिए ना देखिए, बंदे 2-3 ही होते हैं हुकूमत करने वाले, ठीक है, साथ लेके चलने वाले जो है वो सबको साथ इसमें चलना चाहिए। नहीं, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि हमारी एम्बेसी का इसमें ख़ास दखल है कि अपने जो कुछ फनकार हैं उनको नुमाइंदगी यहाँ दी जाती है और दे रही है, और उम्मीद भी की जाती है कि आइंदा भी ये सिलसिला जारी रहेगा, ना सिर्फ हुकूमती सतह पर बल्कि हमारी जो यहाँ मुख्तलिफ तंजीमें हैं, अदबी और लिसानी और सियासी भी कह लीजिए या समाजी कह लीजिए, वो तंजीमें भी जो हैं वो इस तरफ तवज्जो देंगी, अपने कल्चर को प्रमोट करेंगी ना। और आपने कहाँ इस हवाले से और शो पेश किए, और आपके मद्दाह जो हैं वो कौन लोग हैं? मुझे ये पता है कि जर्मन यकीनन इस सिलसिले में सबसे सफ़े अव्वल पे होंगे, क्योंकि वो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। मौसीकी के हवाले से जो ये माशरा है, यहाँ पर मौसीकी को बहुत अहमियत दी जाती है, और हमारा बरसगीर पाक व हिंद का जो मौसीकी का बैकग्राउंड है वो यहाँ बहुत पसंद किया जाता है। इस हवाले से यकीनन आपको काफ़ी कामयाबी मिली होगी। लेकिन फिर भी मैं आपसे सुनना चाहूँगी कि आपके जो मद्दाह हैं या आपके जो सुनने वाले हैं वो किस तरह ज़्यादा होते हैं? तादाद तो हुजूर मैं नहीं बता सकता। हम तो क्या कहते हैं कि पूरे यूरोप में किया करता रहता हूँ, जो लोगों के साथ भी काम कर रहा हूँ। उसकी बल्कि मिसाल है, कल एम्बेसी के इवेंट में भी देखा होगा कि मेरी शागिर्द हैं मरियाना, उनका नाम है, 64-65 है हुजूर, तो अली कर रही हैं, वो पंजाबी भी गाती, मैंने उनको पंजाबी भी, उर्दू भी, सराइकी भी गा रही। अभी कभी
मौका मिला तो मैं आपको, इसी तरह और भी स्टूडेंट्स हैं, तो यानी कि ये लोग फैन भी हैं। और कल का वाकया गवाह है मैं जिक्र करता, जो अपना बड़ी अच्छी शख्सियत बिस्मिल्लाह जी में बैठी हुई है, इनका ताल्लुक भी अदब से भी है माशाल्लाह, और कई हवालों से माशाल्लाह काम कर रही है, बड़ी एक्टिव लेडी है। तो कल प्रोग्राम में माशाल्लाह वो फॉरेनर लोग वो पकड़ के हमको ना कि आपने क्या अच्छी खासा परफॉर्मेंस की, कोई इंग्लिश में, कोई अपनी भाषा में, कोई प्लीज कैन आई टेक वन फोटो। उन लोगों ने इतना एंजॉय किया, उन लोगों ने म्यूजिक को, हमारे प्रोग्राम को बड़ा एंजॉय किया। लेकिन इसके बाद सुर खुद एक जुबान है, बिल्कुल सुर खुद एक जुबान है, ठीक है, और बड़ी ही मीठी जुबान। लेकिन अभी माशाल्लाह आप अभी पढ़ रहे थे नाम आपका सुनते हो माशाल्लाह, उसमें क्योंकि हम और तरह सुनते हैं या देखते हैं, एक फनकार आप सुन सकते हैं, तो जनाब लोग प्यार करते हैं, तादाद तो नहीं मैं बता सकता, लेकिन मालिक का बड़ा एहसान है करम। अच्छा, तो आपकी सीडी वगैरह भी यकीनन लॉन्च हो चुकी होगी या पूरे तवज्जो इस तरफ कम दी है मैंने, होता लेकिन किया बहुत, क्योंकि आपके तो प्रोग्राम पूरी यूरोप में हर जगह मुनक़िद किए जाते हैं, बरतानिया में आप माशाल्लाह खासे मकबूल हैं, वहाँ पे आप बुलाए जाते हैं, हम अक्सर मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे आपको देखते हैं, आपकी परफॉर्मेंस वहाँ सुनते हैं। तो मैं सुनना चाहूँगी कि आप हमारे प्रोग्राम में भी आज जो है वो थोड़ा बहुत अपना फन हमारे सामने इनके सामने पेश कीजिए और हमें जरूर कुछ जो है इस हवाले से भी सुनाइएगा। लेकिन मैं इससे पहले मैं आपसे ये मालूम करना चाहूँगी कि अभी कुछ दिनों कबल एक अखबार के हवाले से कुछ यहाँ प्रोग्राम की जो है वो बाज़गश्त गूंज रही है, तो वो उस प्रोग्राम में आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि आप उस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स या आपके उसमें आप शामिल हैं, मुझे इस हवाले से थोड़ी सी आप हमारे सामईन को मालूमात भी दें और बताएं भी, ताकि वो आपको बराह रास्त सुनने के लिए यहाँ आए हमारे पास। बड़ी मेहरबानी जी, बिल्कुल ये ट्रिब्यूट टू इकबाल, तो इसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है मैं तो कहूँगा आप लोगों का ही है, मैं तो नहीं कर रहा, मैं तो एक हिस्सा हूँ इस चीज़ का, मैं एक हिस्सा हूँ, और बड़ी ही माशाल्लाह इसमें जिसका सिलसिला कर, बल्कि हम सब लोग कर रहे हैं, मैं तो ये कहता हूँ अपना अपना हिस्सा, हम सब का इकबाल है, तो ठीक है, अपना अपना हिस्सा हम उसमें डाल रहे हैं, और बिल्कुल 20 अप्रैल को ये हो रहा है, और मैं तो चाहूँगा कि लोगों को उसमें हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि इकबाल हम सब पाकिस्तानियों के लिए एक सोच, एक फिक्र रखते थे, और मैं तो वैसे ही उनका बड़ा फैन हूँ कि खुद ही को कर बुलंद इतना यहाँ तकदीर से पहले, मतलब खुदा बंदे से खुद पूछे बताते ही रज़ा क्या, तो इस चीज के कायल हम हैं जो शिकवा लिख सकते हैं, फिर जवाब शिकवा लिख सकते हैं, सही बात, मांगे अगर मैं क्या तो फैन हूँ मैं उनका, तो बिल्कुल उसमें जनाब बड़ी ख्वाहिश है मुझे कि लोग आए, और इंशाल्लाह जहाँ तक हमसे जो कुछ होगा करेंगे। बहुत अच्छा, क्योंकि इकबाल के साथ तो जर्मनी का एक अलग राब्ता है, एक अलग, क्योंकि वो यहाँ रहे हैं और कुछ अर्सा उन्होंने यहाँ पे तालीम की गर्ज से यहाँ गुजारा है, उनकी ज़िंदगी काफ़ी अहम लम्हात यहाँ गुजरे हैं। इकबाल से जर्मन माशरा जो है वो अच्छी तरह वाकिफ़ है, बिल्कुल, लेकिन हमारा जो क्लासिकल अदब है, जैसे कि हम अब पीछे की तरफ चले जाएं, अमीर खुसरो, जो कि हमारी सिर्फ शायरी नहीं बल्कि हमारी संगीत का भी एक हिस्सा है, जिसमें हमारे बिल्कुल, तो उस हवाले से आपका क्या मतलब है नजरिया, के उस हवाले से भी यहाँ कुछ प्रोग्राम होने चाहिए अमीर खुसरो क्लासिकल शायरी के हवाले से, क्लासिकल मौसीकी के हवाले से? जनाब बिल्कुल ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए, लेकिन मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, और देखिए क्या लोग बुनियाद रखते हैं, अमीर खुसरो मैं उनको दरवेश, ठीक है, वो ऐसा लिखा है, बल्कि फारसी की भी उनकी गजल गाता हूँ कि हर शब मनम फिता बगिरदे सराय तू, हर रोज आहा नाला हज़बराए तू, तो ये वाले सब और जुबानी में फारसी कलम गाता हूँ, मेरे कुछ लोग का खुद कंपोजिशन की है, बाबा से सुनता था, अच्छा, तो और बल्कि अफगानी कम्युनिटी के साथ बड़ा जुड़ा हूँ, मीर वाइस मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, वो भी हमारा भी इसको साथ दे रहे हैं, अच्छा, खुद भी सिंगर है माशाल्लाह, अफगानी कम्युनिटी मीर वाइस थी, और भी इसको वो भी हमारे साथ दे रहे हैं। अच्छा, क्योंकि देखिए फारसी शायरी या फारसी का जो
پیش کیا جاتا ہے اور اسے لوگ بہت پسند کرتے ہیں شاعری کی صورت میں, قوالی کی صورت میں ہم نے جو ہے اس کو جوڑا گیا ہے نا. اسی طرح کچھ لوگ جو ہیں وہ تجربے کرتے ہیں کہ وہ برصغیر نہیں کر کے وہ آپس میں برصغیر بلکہ وہ کرتے ہیں یورپ اور برصغیر کو جوڑتے ہیں, مطلب یورپی موسیقی اور آپ کی جو کلاسیکل برصغیر کی موسیقی اس کو جوڑ رہے ہیں, اس کے حوالے سے کام فیوژن کیا ہے. تو آپ کا کام اس حوالے سے بھی ہے کچھ آگے آپ بہت بڑا وسیع جو ہے فیلڈ ہے. میں تو یقین کیجیے کبھی کبھی کیونکہ سر خود ایک زبان ہے, کبھی پروگرام سے کوئی جرمن کمیونٹی میں کیے لوگوں کے وہ سرپرائز ہو گئے, یقین کیجیے پروگرام ہوتے رہے ہیں جب بھی ہوئے جرمن ہاؤ یو کین سی کیسے آپ کر سکتے ہیں ایسی, یہ آپ نے گلے میں کیا لگایا ہوا دیکھیے کیونکہ کلاسیکل ہماری بنیاد ہے. سب سے پہلے میں یہ کہوں کہ اگر آپ کی بنیاد ہے مالک کا یہ بڑا کرم ہے میرے والد صاحب میرے وہ استاد بھی کہ ان کے راگ سے لے کے خیال سے لے کے ٹھمری سے لے کے غزل سے لے کے کافی سے لے کے مائیں قوالی ان کے یہاں تک کا سفر آپ کرتے ہیں لیکن اس بنیاد پہ ٹھیک ہے نا. تو یہ مالک کا مجھ پہ یہ چھاپ نہیں تھی یہ کلاسیکل سنگر نہیں میں آپ سب سہر فیلڈ میں آرٹسٹ وہی ہے جو سب کو بالکل صحیح بات راجا ہوتا پرجا کے ساتھ, ہم راجا تو نہیں لیکن نہیں ماشاءاللہ آپ تو سنگیت کے راجا ہیں, ایسے کیسے ہم اس کو ہم تو تسلیم کرتے ہیں کم از کم. اور ماشاءاللہ آپ کا تو میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے سامعین کو بھی کچھ اپنا کلام, اپنی کچھ آواز, کوئی غزل کی کچھ اشعار ہو یا کلاسیکل ہو جو آپ پسند کرتے ہوں. آپ نے جی شاعر لوگ بیٹھے ہیں تو آپ کو غزل ہی ہونی چاہیے. بہت نوازش. تو ٹھیک ہے وہ ایکچولی طبلے کے ساتھ تو نہیں لیکن میں بالکل آپ کے لیے کچھ پیش کرتا ہوں. معاف کیجیے گا. یاد آیا تھا بچھڑنا تیرا, یاد آیا تھا بچھڑنا تیرا, پھر نہیں یاد بکی سر کی غزل ہے. وہی پھر مجھے میں بڑا مشکور ہوں, ممنون حضور آپ نے اور نعمان بھائی نے محبتیں دی اور انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ بھی ایسے سلسلے سجتے رہیں. انشاءاللہ ضرور.
इंशाल्लाह ज़रूर। ख़वातीन हज़रात, ये थे हमारे साथ आज जनाब शबीर खान गुल्लू साहब, जो कि एक नामवर फ़नकार, मौसीक़ार और संगीतकार हैं। इनकी गायकी का जो है वो चर्चा ना सिर्फ पाकिस्तान, हिंदुस्तान बल्कि बड़े सग़ीर में है, बल्कि यूरोप में भी ये अपनी सुर और अपनी संगीत के जादू जो है जगा रहे हैं। 20 अप्रैल को ये एक प्रोग्राम बर्लिन में मुनक़िद कर रहे हैं। इनका एक प्रोग्राम यहाँ है, अगर आप बराह रास्त सुनना चाहते हैं तो आप तशरीफ़ लाइए और इन्हें सुनिए। इसके अलावा आप किसी भी हवाले से, फ़न मौसीक़ी के हवाले से कोई मालूमात लेना चाहते हैं, कोई बातचीत करना चाहते हैं, अपनी गज़लें या अपनी नज़में आप चाहते हैं कि वो ये गाएं और उसको सुरों में ढालें, तो आप इस हवाले से भी रब्ता कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारी देसी धूम रेडियो के थ्रू के हवाले से। और इसके साथ साथ इशरत नसीमा को इस हफ्ते के प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते इंशाअल्लाह ताला हम एक नए मौजू के साथ, एक नई तहरीक के साथ जो है आपके सामने हाजिर होंगे और एक नए शख्सियत से आपको मुतारिफ़ करवाएंगे, नए कलाम से आपको मुतारिफ़ करवाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।